This is third part of enzymology. In this video, we will discuss about factors affecting enzyme activity. There are a lot of factors which affect enzyme activity, like temperature, pH, enzyme concentration, substrate concentration, inhibitors, activators, accumulation of end product. So we will discuss one by one in detail. Okay, first of all is effect of temperature and pH. जो एंजाइम्स होते हैं वो ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर पे काम करते हैं. अगर हम टेम्परेचर या पीएच को ऑप्टिमम से हाई या लो करेंगे देन इट विल डेफिनेटली अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी. सो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच? एंजाइम्स जनरली फंक्शन इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच and show their maximum activity at optimum temperature and pH. Thus, both high and low values of temperature and pH influence catalytic activity of enzyme. So, if we increase temperature, so how temperature affect enzyme activity? If we increase temperature, then the optimum range, then what happens? Enzyme gets denatured and stops functioning. Enzyme catalyzed reactions show a more complex temperature range, temperature dependence, because raising a temperature above certain value may cause denaturation of enzymes and thus catalytic activity is lost. नेक्स्ट इज़ पीएच. अगर हम पीएच का इफेक्ट देखें कि कैसे पीएच जो है वो चेंज करने से हमारी एंजाइम एक्टिविटी इफेक्ट होगी, तो देखो कैसे करेगी. एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन पीएच बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड अमाइनो एसिड रेसिड्यूज इन एक्टिव साइट. Changes in pH cause changes in overall charge of amino acid, which will ultimately changes in catalytic activity of enzyme. Now let's see how enzyme activity affected by pH changes. So this is the active site of enzyme. दिस इज़ एक्टिव साइट एंड हर एक एक्टिव साइट के ऊपर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होती हैं. जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, ग्लाइसिन है, सीरिन है, हिस्टिडिन है, एस्पार्टेट है. सो हर एक अमाइनो एक्टिव साइट के ऊपर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होती हैं और वो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज सबस्ट्रेट से इंटरेक्ट करती हैं एक स्पेसिफिक आयनिक फॉर्म में. मीन्स या तो वो कैटाइनिक फॉर्म में या एनाइनिक फॉर्म में, वो डिपेंड करता है कि कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, ठीक है, और कौन सा सबस्ट्रेट है. तो स्पेसिफिक आयनिक फॉर्म में ही वो इंटरेक्ट करती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है एंजाइम की कैटालिसिस के लिए. सो अगर हम पीएच को चेंज करते हैं तो क्या होगा, देन वी नो कि आयनिक स्टेट विल ऑल्सो बी चेंज्ड. अगर आयनिक स्टेट जो है वो चेंज हो गई तो क्या होगा, अमाइनो एसिड्स इंटरेक्ट नहीं करेंगे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से, जिसके कारण क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो जाएगी. फाइन. अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एक्टिव साइट कंटेन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज विच टेक पार्ट इन कैटालिटिक एक्टिविटी बाय बाइंडिंग विद द सबस्ट्रेट. So next is amino acid residues on active site binds in particular ionic form. Okay, changes in pH cause changes in ionic state of amino acids on active site. So changes in ionic state of amino acid makes enzyme incapable to bind with substrate. Thus enzyme's catalytic activity is lost. So enzyme works at optimum pH range. So that's why जो enzyme होगा वो हमेशा specific pH पे ही function करते हैं. Next is effect of substrate concentration. So increase in substrate concentration increases the activity of enzyme until all the active sites of enzyme molecule are saturated with substrate. After the saturation, the rate of enzymatic reactions become steady. So that means देखो substrate concentration को increase करने से क्या होगा, enzyme activity increase होगी, but सिर्फ तब तक जब तक हमारे पास free enzyme available होगा. क्योंकि अगर फ्री एंजाइम ही नहीं है तो दैट मीन्स एक्टिव साइट कोई बची ही नहीं है हमारे पास, तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने का तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, राइट. नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन. नाउ सेम एज दैट विद एंजाइम ऑल्सो. If there is enough substrate is available in the medium, then rate of reaction will increase with increase in substrate concentration. A small amount of enzyme is enough for large amount of substrate. थोड़ा सा एंजाइम ही अगर हम ऐड करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट के लिए वो इनफ होता है. एंजाइम की हमें बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करने की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट इज़ इफेक्ट ऑफ एकमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स. देखो अगर हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स बहुत सारे एकमुलेट हो जाएं तो क्या उसका इफेक्ट क्या होगा. द एंजाइम एक्टिविटी इज़ रिड्यूस्ड बाय एकमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन. अब देखो ये है हमारे पास एंजाइम, ठीक है, एंजाइम के ऊपर एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड किया सबस्ट्रेट के बाद हमारे पास बन गया प्रोडक्ट, ठीक है. यहाँ पे बहुत सारा हमारे पास इनफ एंड प्रोडक्ट बन गया जितना हमें रिक्वायर्ड था. देन एंड प्रोडक्ट क्या करेंगे, फिर एंजाइम की
जो एक्टिव साइट के अलावा कोई और साइट जो होती है जहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल्स जाके बाइंड करते हैं, उस साइट को हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, तो जो एंड प्रोडक्ट है वो यहाँ पे एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जाके बाइंड करेंगे। बाइंड करने के बाद देखो क्या चेंज आया, यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर ऐसे था, अब इसका स्ट्रक्चर, इसकी एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। मींस जो एंड प्रोडक्ट है हमारे वो एलोस्टेरिक साइट के ऊपर इन्होंने बाइंड किया जाके, और उसके बाद एंजाइम के एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट है अब वो बाइंड नहीं करेगा और जो हमारी एंजाइम एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाएगी। सो अब देखो, द एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी इज रिड्यूस्ड बाय अकमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन। इसको फीडबैक इनहिबिशन भी बोलते हैं। व्हेन इनफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, then the end product binds to specific enzymatic site other than the active site and alters the enzyme structure। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक आया हुआ है कि कैसे जो है हमारे एंड प्रोडक्ट्स वो इनहिबिट करते हैं रिएक्शन को। Thus enzymes will no longer be able to bind to substrate and its activity gets retarded. The site other than active site to which end products bound is known as allosteric site। एलोस्टेरिक रेगुलेशन के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इट इज़ कॉल्ड एलोस्टेरिक रेगुलेशन। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स ऑन एंजाइम एक्टिविटी। अब देखो इनहिबिटर्स वाला ये जो टॉपिक है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एवरी ईयर इस टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चंस रिपीट होते ही हैं। पार्ट सी में भी, पार्ट बी में भी हो सकते हैं और गेट में के लिए भी। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एंजाइम इनहिबिशन। सो यहाँ पे हम सिर्फ ओवरव्यू करेंगे। इनहिबिटर्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच इनहिबिट एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, inhibitors are of different types. First is competitive inhibitor, non-competitive inhibitor, uncompetitive inhibitor and mixed inhibitor। ये जो types हैं inhibitors की, इसमें से बहुत सारे questions पूछे जाते हैं। The type of inhibition depends on nature of inhibition, nature of inhibitor, sorry, nature of inhibitor। Next is effect of activators on enzyme activity. Enzyme activators are chemical compounds that increase the velocity of enzymatic reaction. Their actions are totally opposite to the effect of inhibitors. Next is some enzymes need additional molecules for activity like metal ions. बहुत सारे एंजाइम्स हैं जैसे कि हमने पढ़े थे कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, जिनको कि प्रोस्थेटिक ग्रुप चाहिए एक्टिवेट होने के लिए, उसके बिना वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। सो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कैसे एक्ट करेंगे? एक्टिवेटर्स। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑल्सो एक्ट एज एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स आर इन्वॉल्व इन एलोस्टेरिक रेगुलेशन। जैसे हमने फीडबैक इनहिबिशन पढ़ा, उसमें एलोस्टेरिक रेगुलेशन की ही वो भी एक एग्जाम्पल है। उसमें क्या होता है? इनहिबिशन होती है। सो एलोस्टेरिक रेगुलेशन में एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। रिएक्शन प्रोडक्ट्स इनहिबिट कैटालिसिस इन एंजाइम्स बाय। अब प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैसे इनहिबिट करते हैं एंजाइम्स को? ये दिसंबर 2013 का CSIR नेट में क्वेश्चन है। फर्स्ट इज कोवेलेंटली बाइंडिंग टू एंजाइम। नो, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। एंजाइम के साथ पहली बात तो प्रोडक्ट्स या सबस्ट्रेट कोई भी कोवेलेंटली बाइंड नहीं करेंगे, हमेशा वीक इंट्रैक्शन से बाइंड करते हैं। सो दिस इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट इज अल्टरिंग द एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम स्ट्रक्चर को अल्टर। येस, ये तो हमने पढ़ा है कि जब उसकी एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड करेंगे तो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर जो है एक्टिव साइट का वो अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिसके कारण सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा और एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। सो दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन। बाकी भी हम एक बार देख लेंगे। ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट। नो, एक्टिव साइट पे कभी भी प्रोडक्ट्स बाइंड नहीं करेंगे, हमेशा एलोस्टेरिक पोजीशन पे बाइंड करेंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट इज फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद सबस्ट्रेट। नो, प्रोडक्ट्स जो हैं वो सबस्ट्रेट के साथ कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, अल्टरिंग द एंजाइम स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट 4 में हम एंजाइम इनहिबिशन को स्टडी करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हर साल क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं। ओके।